श्री दीपक रीणा जी, अतिरिक्त आयुक्त नागपुर महानगर पालिका, श्री श्रीकांत डुबे, श्री पीजे नारायणन। Ms. Nivriti Rai, Country Head Intel India and VP Intel Foundry Services, is requested to please deliver welcome address. Thank you very much. Very good morning. खेत के साथ आपको बताना चाहती हूँ कि भारत के दुर्घटना वाले आंकड़े बहुत दर्दनीय हैं। 1 घंटे में 17 लोग, युवा लोग नहीं बचते सड़क दुर्घटना के कारण। हमें इकट्ठा आकर अपने देश के लिए कुछ करना ही होगा। मैं अंत में आपसे ये कहना चाहती हूँ कि चला आपण एकत्र प्रथम नागपुरात सुधारण करा, पछी देश सुधारण करा। थैंक यू वेरी मच। Honorable Minister, Road Transport and Highway, Nitin Gadkari ji, Honorable Member Rajya Sabha, Dr. Mahatme ji, our good friend P.J. Narayanan and Nivriti Rai, my colleague, senior colleagues, Dr. Satish Chandra, Dr. Chandrasekhar, friends from Mahindra & Mahindra, and all the friends gathered here. सर्वप्रथम सर्वांना गणेश उत्सवाच्या हार्दिक शुभेच्छा। आज आपण खऱ्या अर्थाने एका मोठ्या प्रोजेक्ट श्री गणेशा करत आहोत इथे। If I think back upon some of the futuristic technologies that need to be implemented for the betterment of our society for the future, it is generally agreed upon that nothing can be implemented first beyond Nagpur. So Nagpur is always the leading city which implements most of the futuristic technology that we can think of. And it will not be wrong to say that all the credit for that goes to Honorable Minister, Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, who has been extraordinarily progressive about implementing many of the futuristic technologies here. It was therefore natural that when this project was being conceived between IIT Hyderabad, Central Road Research Institute, Intel and Mahindra for integrating artificial intelligence and road safety, it would naturally be Nagpur where it can be done. So we as Nagpurians are extremely proud that we are going to implement this particular project here, and if this project is successful, this can become a role model for all other cities in the country to reduce number of road accidents and number of road deaths, as Nivriti correctly pointed out. Very pleased to be here, and I wish all the project all the very best and success in future. Thank you. Honorable Union Minister of Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari ji, Honorable Member of Parliament, Dr. Vikas Mahatme ji, other dignitaries on the dais, off the dais, participants, invitees, and friends. I am very delighted to be part of this event today on a topic which is very close to my heart, because CRI has been working in road safety for a long time, and we have done road safety audit of almost 9,000 km of national highway and state highway in the country. And recently, Ministry of Road Transport and Highways has given a mandate to CRI to conduct training programs for creating road safety auditors in the country. And I am happy to say that in the last couple of years, we have created almost 900 road safety auditors which can take this task of auditing of highways in the country, in different states. Now this project is of unique nature, one of its kind, where we will be using artificial intelligence and engineering and technology to reduce traffic accidents on roads and highways in the city of Nagpur. And I am pretty sure that we will be successful with the blessings of our Honorable Minister and with the blessings of all citizens of Nagpur. And this is unique because 5 agencies have come together, including implementing agency Nagpur Municipal Corporation, to see the success of this project. Very happy to be here and very happy to be part of this event. Thank you very much. Welcome to Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji, MP Vikas Mahatme ji, and our partners in this project from
Intel, CSIR, NNC, as well as Mahindra and Mahindra. I'm very pleased to be here. I represent IIIT Hyderabad and the research group INAI that we created. INAI is intended to apply AI for societal applications. IIIT Hyderabad is a young university started in 98, catalyzed by the state government but not funded by it, so we are an institution also. Our model has been adopted by the MHRD and 20 new IIITs in this PPP mode was started, including one right here in Nagpur. We have strength in technology, AI in particular and general technology, and our motto is to apply it for problems of the society. We do work on many areas. One of them is, of course, what is called autonomous driving by people. We have a car on campus which drives around a little bit. It's used more as a platform to study the algorithms and navigation. Autonomous driving has been getting a lot of attention recently. It's a good problem to focus energy. सड़क परिवहन को सुरक्षित बनाने हेतु इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट आई रास्ते. India has one of the largest road networks in the world and is emerging as the fastest growing network. With more vehicles on the road, safety is now crucial than ever before. Project iRaste is a unique partnership of industry, academia and government and is initiated by Nagpur Municipal Corporation, CSIR, CRRI, Mahindra and Mahindra, INAI, IIIT Hyderabad and Intel. It brings in a holistic, safe systems approach to aspects of vehicle safety, mobility analysis and infrastructure safety. Advanced Driving Assistance Solution or ADAS will offer an economical way to enhance safety of fleets and road users. ADAS alerts alongside driver assessments and training can notably improve driver performance. Mobility analysis will monitor dynamic risks of the entire road network to define grey spots. Preventive maintenance of such risky stretches will prevent black spots before they claim lives. Infrastructure safety will design engineering fixes for existing road black spots. Continuous monitoring will also deliver improved ROI of road infrastructure maintenance. Join us in the mission to reimagine road safety with the predictive power of AI. Project iRaste, intelligent solutions for road safety through technology and engineering. Dignitaries on the dais. Good afternoon to everybody. Dear ladies and gentlemen, I am Dr. S. Velmurugan, working as a Chief Scientist at Central Road Research Institute. Feel honored to make a brief presentation of this project captioned iRaste. As I feel honored to make this deep sense of gratitude, I would like to tell that I am making this presentation in front of the Honorable Minister for Road Transport and Highways during this launch event, and I thank him for having agreed to chair this event. So as we see, I want to tell, this is a project where जी वैसे यहाँ उपस्थित इंटेल के प्रमुख श्रीमती राय जी, निवृत्ति राय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी मान्यवर, मीना जो एडिशनल कमिश्नर हैं कॉर्पोरेशन में, वैसे ही उपस्थित श्री करमनपे जी, विजय जी, सतीश चंद्र जी मेरे सामने बैठे हैं, और वैसे नारायण जी और सभी मान्यवर, महिंद्रा के और बाकी कंसोर्शियम के जो भी मान्यवर हैं यहाँ बैठे हुए, जिनके सहयोग से यह पूरा कार्यक्रम हो पाया है, वैसे सभी अधिकारी वर्ग, संसद सड़क सुरक्षा समिति के अधिकारी वर्ग भी यहाँ आए हुए हैं, NGOs भी आए हुए हैं,
और मैं सबको बताना चाहूँगा कि हमारे मंत्री जी के विजन में जो है कि सड़क सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। आप सबको पता है कि कोरोना काल में करीबन एक साल में, अभी एक साल से ज्यादा हो गया, लेकिन एक साल में करीबन 1.5 लाख लोगों का मृत्यु हुई। बहुत बुरा हुआ और हमने उसके लिए काफी मेहनत भी की, लेकिन यह भी ख्याल में रखना चाहिए कि 1.5 लाख लोग पिछले कई सालों से, उससे भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, एक साल में एक्सीडेंट की वजह से मौत हो रही है, रोड एक्सीडेंट की वजह से मौत हो रही है। और इनका जो एज ग्रुप है वो करीबन 18 से 35 साल का है, और जो बहुत एक्टिव है, पॉलिटिशियंस भी काफी एक्टिव रहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट भी काफी एक्टिव रहते हैं, वो जो रोड पर आना जाना करते हैं उनमें यह प्रमाण ज्यादा है। तो इसे हम पहचाने और इस पर काम करें, इसलिए ये सभी लोग साथ में आए, इंटेल, महिंद्रा और कंसोर्शियम के सभी लोग, गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो। राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर विकास महात्मे, CSR भारत सरकार के DG डॉक्टर शेखर मांडे, महानगर पालिका के अपर आयुक्त श्री दीपक कुमार मीना, श्री सतीश चंद्रा डायरेक्टर CR राय, इस प्रोजेक्ट को जिनके इनिशिएटिव से शुरुआत हुई है उनको मैं विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। श्रीमती निवृत्ति राय, प्रमुख इंटेल इंडिया, श्री श्रीकांत दुबे, प्रमुख महिंद्रा एंड महिंद्रा, जिनकी सहयोग से इस प्रोजेक्ट को हम आगे ले जा सके, प्रोफेसर PJ नारायणन, जिन्होंने हैदराबाद IIT जिनके जो निदेशक है, जिन्होंने इसके लिए जो विशेष ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोड सेफ्टी में जो टेक्निकल रिसर्च करके जो काम किया है, उनकी सभी टीम, वर्मा कोनाला, CEO INI अप्लाइड AI रिसर्च सेंटर IIT हैदराबाद, उपस्थित सभी प्रतिनिधिगण, सभी उपस्थित अधिकारीगण, भाई और बहन, सबसे महत्वपूर्ण है कि आज का एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट की शुरुआत नागपुर में हो रही है, और नागपुर का सांसद होने के नाते मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन भी करता हूं। सांसद होने के नाते हमने नागपुर के लिए कुछ बातें तय की है, विशेष रूप से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन। इसमें भी भांडे साहब आपका निधि का हमें सहयोग चाहिए कि हमें तीनों को भी इंटरनेशनल पैरामीटर्स के साथ हम उसको नागपुर को पहुंचाना चाहते हैं, और तीनों बातों पर हमने काम शुरू किया है। विशेष रूप से नाग नदी जो थी नागपुर की, उसके ऊपर 2400 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की अब शुरुआत हो रही, जो सीवेज वाटर हमारा है। बाकी भी नालों में काम करने वाले हैं, जिससे नागपुर के वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम निश्चित रूप से हम सुलझाएंगे। और पहली बार देश में जो गंदा पानी सीवेज वाटर था, इसको रिसाइकलिंग करके हमारी महानगर पालिका पावर जनरेशन के लिए दे रही, जिससे 325 करोड़ हमको रॉयल्टी के रूप में उस पानी से मिलता है। अभी कोशिशें कर रहे हैं कि उस पानी से मिथेन निकालकर बायो CNG करने की कोशिश चल रही है। और अब मैं और आगे जाकर ये कमिश्नर साहब से मैंने चर्चा की है, सीवेज वाटर का कन्वर्शन से हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन में उसको कैसे हमारे उत्पादन में करें, सोलर पावर का उपयोग करके इस गंदे पानी को हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रोलाइजर है उसके द्वारा इससे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करके ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करके हम शहर का ट्रांसपोर्ट उसके ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमने हमारी जो डीजल की हमारी परिवहन समिति के अध्यक्ष यहाँ है उपस्थित, और हमने अभी डीजल की जो बसेस थी करीब 125 बसेस CNG पर कन्वर्ट की है। 4 दिन पहले मैंने इनकी भी गाड़ी CNG पर कन्वर्ट की।
नागपुर महानगर पालिका में अगर हम लोग पेट्रोल की पूरी गाड़ी अगर सीएनजी पे कन्वर्ट करती है तो मीना साहब हम 1 करोड़ रुपए साल का पेट्रोल पे खर्चा कर रहे हैं। हमारी बचत कम से कम 50 से 60 लाख रुपए महीने में हो सकती है कि सभी अधिकारी और सबके पेट्रोल कार को तुरंत कन्वर्ट करें। ये बात अगर आप सीरियसली करेंगे तो निश्चित रूप से नागपुर का पोल्यूशन भी कम होगा, उसका उपयोग होगा। मैंने नेवी में जो पहले डायरेक्टर थे अभी बदल गए, उनको कहा था कि आप पोल्यूशन के लिए काम करते हैं तो आपके पूरे व्हीकल आप पेट्रोल डीजल के बजाय सीएनजी पे कन्वर्ट करिए। तो उस समय मैंने उनको कहा था कि आप ये प्रोजेक्ट लीजिए ताकि आपके कारण आप सबसे हमारे आदर्श है तो आप कम से कम पोल्यूशन मत करिए, डीजल का उपयोग नीरी में कम से कम बंद करें। हाँ है, तो आपके पुराने डायरेक्टर ने वो सीएनजी पंप डाल करके वो प्रोजेक्ट आप आगे ले जाइए और इसमें नागपुर के पोल्यूशन में आप एक पहल करिए। पुलिस और मिलिट्री में परसों हमारे जो मिलिट्री के जो मुख्य हरपाल सिंह नागपुर में उनको बुलाया था और उन्होंने पूरे सीएनजी और एलएनजी पर जो हमने कन्वर्ट किया पूरे प्रोजेक्ट देखे। और कल मैं परसों ही मैं चीफ ऑफ द आर्मी अपने रावत साहब के साथ था, उनको भी मैंने कहा है कि आप आपके पूरे मिलिट्री के व्हीकल ये सीएनजी पर एलएनजी पर और अभी इथेनॉल पर कन्वर्ट करिए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते अभी आने वाले 6 महीने में हम मैंडेटरी निर्णय कर रहे हैं कि हमारा पेट्रोल इंजन ये इथेनॉल पर फ्लेक्स इंजन होगा, जिसमें हम 100% पेट्रोल और 100% बायो इथेनॉल यूज कर सकेंगे। और इथेनॉल के पंपों को भी सरकार ने मान्यता दी है और अभी इथेनॉल की बाइक और स्कूटर भी मैं अभी लॉन्च करने वाला हूं और पूना में ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल की चालू कर रहे हैं। इथेनॉल का रेट केवल 65 रुपए है और पेट्रोल का 110 रुपए है, तो निश्चित रूप से लोगों का भी फायदा होगा। और अभी मैंने पेट्रोलियम मंत्री जी को एक टेक्नोलॉजी रशिया से लाकर उसका प्रेजेंटेशन किया है कि इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू और पेट्रोल की कैलोरिक वैल्यू सेम करेंगे उसकी मिक्सिंग की पद्धति से। तो इथेनॉल हमारे देश में तैयार होता है और पेट्रोल हम इम्पोर्ट करते हैं। BMW, मर्सिडीज, हुंडई, टोयोटा सब लोगों ने मान्य किया कि वो फ्लेक्स इंजन पे जाएंगे। अभी सियाम के एक कार्यक्रम में मैं था, इसमें एक कैनेडियन एक्सपर्ट थे, उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन पर प्रेजेंटेशन किया और ब्राजील के एक्सपर्ट थे, उन्होंने इथेनॉल पर किया। मुझे खुशी हुई कि कल इन परसों ही मुझे टोयोटा के चेयरमैन विक्रांत किर्लोस्कर का मेल आया और उन्होंने मुझे बताया कि वो इलेक्ट्रिक कार से भी इथेनॉल का पोल्यूशन और कम है, वो 100% फ्लेक्स इंजन का उन्होंने काम शुरू किया है और जल्दी ही वो टोयोटा की पूरे इंजन पेट्रोल की उस पर कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम जल्दी इसको लॉन्च करेंगे। तो एक प्रकार से ये जो पोल्यूशन के ऊपर बड़ा काम हो रहा है, उसी प्रकार से रोड इंजीनियरिंग में भी हमने अभी एयरबैग्स के बारे में मैंडेटरी करने का निर्णय किया है ताकि इकोनॉमिक मॉडल में एयरबैग्स नहीं थी। तो मैंने पूछा कि गरीब को मरने दो, धनवानों की जान बचाओ, ऐसी कोई आपकी नीति है क्या? इकोनॉमिक मॉडल में क्यों नहीं करते? अब इकोनॉमिक मॉडल में भी 6 एयरबैग्स रहेगी और जिसके कारण निश्चित रूप से हम लोगों की जान बचाने में सफल होंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज यही है कि इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफी हमने निर्णय किए हैं, जिससे रोड सेफ्टी की तरफ हमने उसकी तरफ ध्यान दिया है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि इसके साथ साथ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में काफी सुधार तो हो रहे हैं और अब हमने जो रोड में भी काफी 3 विश्व विक्रम किए हैं। यह वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट रोड कंस्ट्रक्शन हमारे राष्ट्रीय महामार्ग का है, 38 किलोमीटर पर डे। ये भी विश्व विक्रम है। और दूसरा भी हमने किया कि 2.5 किलोमीटर 4 लेन कॉन्क्रीट रोड हमने केवल 24 घंटे में मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर मुंबई बड़ौदा के बीच में बनाया और उसको वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट मिला। तीसरा जो सोलापुर बीजापुर जो रोड है, वहां हमने एक ही दिन में 24 घंटे में 26 किलोमीटर 1 लेन बिटवीन रोड बनाया। ये 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड तो हुए हैं
और 2 दिन पहले हमने हमारी रोड कम एयर स्ट्रिप बनाई और मैं एक बहुत बड़े हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली से निकले थे। एयरफोर्स के हमारे चीफ ऑफ द एयरफोर्स थे, मैं था, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी थे, और उसका जब लैंडिंग हुआ तो मैं पायलट के बाजू के एक कुर्सी पर मैं खड़ा था, दूसरी तरफ डिफेंस मिनिस्टर के, और बीच में हमारे एयरफोर्स के एयर चीफ खड़े थे भदौरिया जी। और जब उसका लैंडिंग हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारी एयर स्ट्रिप से भी कई गुना आपका रोड ही अच्छा बनता है। जिस एयर स्ट्रिप हमने बनाई जहां रोड कम हवाई जहाज उतर सकेंगे, और जो रोड से एमिनिटीज हम बना रहे हैं उसमें 450 हेलीपोर्ट बनाना है। उसका उद्देश्य यह है कि एयर एम्बुलेंस के द्वारा भी नागपुर में हमने लंग्स और हार्ट को ट्रांसप्लांट करने का काम शुरू किया। कोविड के समय बहुत लोग मर गए, हम उनको चेन्नई पहुंचा नहीं पाए। हमारे एमएलए अनिल सोले, उनका भाई मर गया क्योंकि यहां से पहुंचा नहीं पाए। तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के बारे में हमने ड्राइविंग लाइसेंस में प्रोविजन किए हैं कि वो व्यक्ति लिखता है कि अगर कोई दुर्घटना हुई तो मैं अपने पूरे ऑर्गन डोनेट करने के लिए तैयार हूं। तो ये तुरंत अगर हम एक्सीडेंट होने के बाद उनको हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस से अगर हॉस्पिटल ले जाएंगे तो हम निश्चित रूप से एक तो पहले उनकी जान बचा बचाने की कोशिश करेंगे। अगर जान नहीं बची तो कम से कम ये जो ऑर्गन्स है इससे अनेक लोगों को आंखें मिल सकती है, हार्ट मिल सकता है, लंग्स मिल सकती है। ये जो ऑर्गन्स डोनेशन से लाखों लोगों का जीवन बदल सकता है। ये भी काम इसके द्वारा करने की हमारा प्रयास है। तो ये आपके लिए और इस काम में आगे जाने के लिए बहुत बहुत मौका है। पर पहली बार एक्सीडेंट ही ना हो, ये क्यों ना हो, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आज मीडिया के लोग भी हैं, वो जरा स्टैटिस्टिक के बारे में नागपुर का भी मैं लेके आया हूं, और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि मैं भी सांसद होने के नाते, इसमें कैसे मंत्री होने के नाते फेल हुआ, ये भी आपको बताना चाहूंगा। आप इसमें सबको एक्सपोज करने का काम करिए, क्योंकि ये जो अधिकारीगण है, क्षमा मांगकर आपको कह रहा हूं, जितनी संवेदनशीलता चाहिए उनका परिचय नहीं होगा। इतने ब्लैक स्पॉट्स है। ये महानगर पालिका के इंजीनियर सामने बैठे हैं, एनआईटी के हैं, हमारे एनएचआई के हैं। तुरंत एक्सीडेंट क्यों हुआ उसका अध्ययन करना, उसको सुधारना, इसके बारे में कोई इनिशिएटिव नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी यंत्रणा को और संवेदनशील बनना पड़ेगा, और लोगों के जान बचाने के लिए, रोड सेफ्टी के लिए उनको सहयोग करना पड़ेगा। विशेष रूप से महानगर पालिका का, एनआईटी का और पुलिस यंत्रणा का बहुत इम्पोर्टेंस। एक 4 दिन पहले मैंने मीटिंग करवाई थी। जिले के भी पुलिस अधिकारी थे, शहर के भी थे, और मुझे लगता है वो देख रहे थे, वो स्टैटिस्टिक, डाटा, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन बहुत कमी है। एक क्या कर रहा है दूसरे को मालूम नहीं, दूसरा क्या कर रहा है तीसरे को मालूम नहीं, और इसके कारण काफी प्रॉब्लम्स, दिक्कतें हैं। हमें सबको मिलकर इन बातों को, जो अड़चने हैं, उनको रिमूव करना है। और इसलिए सबसे अच्छा कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं होता है, और इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपके टीम में, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक बात में भी बहुत क्लियर हूं, जो व्यवस्था काम नहीं करती उसको उखाड़ के फेंक दो, ये कहने में मैं संकोच नहीं करता। मैं एडमिनिस्ट्रेशन में मेरा ब्रीड, आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। और अगर मुझे गुस्सा आता है तो मैं बड़े बड़े, तुम वर्मी कल्चर करने के लायक नहीं हो, तुम बीआरएस लो होगा। तो कभी कभी इसलिए कहता हूँ क्योंकि वी लाइक पीपल जो परफॉर्म करें, और इसलिए इकोनॉमिक ऑडिट से भी परफॉर्मेंस ऑडिट इम्पोर्टेंट। और ऑलवेज आई हैव अ स्लोगन दैट आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। इसमें अभी आपके इसमें ये पूरे जो स्टेक होल्डर्स है, इसमें मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी ओएसडी जो भी आईआईटी ग्रेजुएट हैं, चीफ इंजीनियर रिटायर्ड हुए हैं, मिस्टर ठेंग यहाँ उपस्थित है, उनको आपके टीम में ज्वाइन कर लो, क्योंकि डंडा मारने का काम आप नहीं कर पाओगे। मुझे बताओगे तो मेरे नाम से ही आधे काम आपके हो जाएंगे। जब मैं रिव्यू कर रहा हूँ मुझे पता चल जाएगा तो सिस्टम की स्पीड एकदम वर्ल्ड स्टैंडर्ड की रिकॉर्ड ब्रेक बन जाएगी। क्योंकि मैं कहीं कोई ढीला वाला है
मैं उसको ठोके बिना तो छोड़ता ही नहीं। मैं इन सब यंत्रणों को फास्ट कर दूंगा, तो आप एक बार उनको भी इसमें लो, इतना मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी तीसरी बात जो मांडे साहब वहां से है, नेवी के डायरेक्टर है, सेंट्रल रिसर्च जो है, अभी मैं यही बाजू के बिल्डिंग में रहता हूँ और मैं 11वें मंजिल पे रहता हूँ। मेरे पास पहले मुझे अकल मिली कि जो नीचे में आवाज होता है ऊपर में ज्यादा आता है, इसका अनुभव मुझे आया। और पिछले कुछ दिनों से मैं रोज 1 घंटा प्राणायाम भी करता हूँ और 1 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ। रोज यहाँ खट 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 जितना आवाज आती है रोज मैं डिस्टर्ब होकर 1 घंटा ये सब आनंद लेता हूँ, कितना यहाँ का पोल्यूशन का। तो मेरे ध्यान में आया कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन के साथ साउंड पोल्यूशन भी इम्पोर्टेंट है। दुर्भाग्यवश उसके तरफ ध्यान नहीं है। तो अभी उसका मंत्री मैं हूं तो मेरी कमी है। तो हमने ये तय किया है कि अभी हमारे यहाँ जैसे इंजीनियर्स जो भी ये बैठे हैं सेंट्रल रिसर्च, इनको भी मैं चैलेंज करता हूँ। एक भी फ्लाईओवर ऐसा नहीं है कि जिसके एक्सपेंशन जॉइंट अच्छे हैं। तो मैंने ठेकेदारों को तो ठोकाया, अधिकारियों को भी ठुकाई की। और मैं जब 95 में मुंबई महाराष्ट्र में मंत्री था, तब मैंने मुंबई में 55 उड्डानपुर और मुंबई पुणे एक्सप्रेस और वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाया। तो आप एक बार जरूर जाकर, मैंने जेजे हॉस्पिटल में एक फ्लाईओवर बनाया, जेजे हॉस्पिटल से विकी तक, श्रीनिवासन करके कंसल्टेंट है हांगकांग के, और उसके एक्सपेंशन जो है देखो, पेट का पानी नहीं हिलता ना आवाज आता है। यहाँ के मैंने चेंज करने के लिए लगाया और अभी मैंने कहा है कॉन्ट्रैक्टर को तुम्हारे सब चेंज करने पड़ेंगे, मैं उखाड़ के निकाल के बाहर करूंगा और आपको नए लगाएंगे। तो वो आप ये जो रोड में आवाज क्यों आता है, इसमें कंक्रीट पे सरफेस होने के बाद उसके वो बिटुमिन सरफेसिंग करना या बिटुमिन में रबर डालना या प्लास्टिक और रबर को यूज करके कैसे करना ताकि आवाज कैसे कम हो। जब नया नया मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बना तो सीमेंट रोड के कारण बहुत जगह टायर को आग लग गई। तो मुझे लगता है कि आप टायर से लेकर हॉर्न तक ये आप रोड के आप आपका रिसर्च बनाइए। और अब मैंने ये निर्णय किया है कि हॉर्न जो बजाते हैं, और जो पहले तो हमने सायरन बंद कर दिए, इसमें बहुत अच्छा मुझे काम हुआ कि मंत्रियों से लेकर अनेक लोगों के सायरन बंद करने का सौभाग्य मुझे मिला, और इसलिए सब सायरन है। अभी जो सायरन है वो एम्बुलेंस के है और पुलिस के कुछ गाड़ियों के। बहुत से जिलाधिकारी मुझे कहते कि हमको सायरन चाहिए, क्योंकि सायरन स्टेटस सिंबल और सरकारी अधिकारी और मंत्रियों को लगता है कि कैबिनेट का दर्जा है लाल दिया, तो लाल घूमता हुआ लाल दिया। ये अनेक सपनों का एक प्रकार से एम्बिशन रखी थी और हमने पूरे उखाड़ के फेंक दिया। अभी इनके बाकी है, ये भी फेंकने का इच्छा थी, ये केवल पुलिस की कुछ गाड़ियों पर इसके रखे हैं। तो ये जो सायरन का आवाज होता है, तो मुझे आइडिया है कि मैंने अभी हमारी आकाशवाणी में एक जर्मन वायलिन वादक थे, वो जब आकाशवाणी में सुबह 5:30 बजे वो बजती थी ट्यून, तो आकाशवाणी की ट्यून है, तो ऐसी कोई ट्यून बजेगी जिससे कानों को कुछ अच्छा लगे। इतने कर्कश आवाज देते हैं सब सायरन, उसको बंदी लानी चाहिए। वो मैं काम करूंगा, तो मिल गया, मैं काम कर रहा हूँ। और वैसे मैन्युफैक्चरर को कहने वालों का इसके बाद हॉर्न जो बजेगा वो इंडियन म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का ही जो स्वर लगा उसी का मंगल अच्छा स्वर उसमें आएगा। ये जो पाव पाव करके बजाते हैं ये नहीं चलेगा। और ये रोड के बीच में होने वाला आवाज और गाड़ी के कारण होने वाला आवाज, ये तो ट्रक और हमारे देश में तो आरटीओ जैसे फिटनेस सर्टिफिकेट देते हैं। अभी मैं कुछ कहता नहीं, मैं मंत्री हूँ उसका, ये कॉन्करेंट लिस्ट में है और इसलिए इनको सबको सुधारने के बारे में मैं कोई चिंता नहीं करता। आपकी बातें सुधरी है, स्टेट लेवल पर कुछ सुधारने की आवश्यकता है। और इसलिए फाइल्स करने के बारे में भी हम लोग नए नए आने के रोड पे जो पार्किंग करते हैं, तो मैंने कहा पुलिस वालों पर बहुत प्रेशर है काम का। तो समाज में बहुत सेवाभावी लोग हैं, कुछ रिकामचोट भी है, वो खड़े हुए रोड पे गाड़ियों का फोटो निकाले और उस तारीख और डेट को भेजकर अथॉरिटी के पास भेज देगा। अगर उससे फाइन वसूल होता है तो फोटो निकालने वाले को भी 25% मिल जाएगा। पुलिस का भारी काम हो जाएगा। नहीं तो इनके यहाँ तो पकड़े गए पूरे NHI के रोड पर पूरे गाड़ियों का पार्किंग, पूरे धाबे बने हुए। मुझे समझ में नहीं आता कि हमारे दामाद है क्या, उनका क्यों नहीं कार्रवाई होती।
ये कार्रवाई क्यों नहीं होती, इसका कारण आपको भी मालूम है और मुझे भी मालूम है। ये पब्लिक जन आक्रोश जैसी संस्था है, फोटो निकालने का काम करेगी, ये भी एक कंट्रोल होगा और ये अच्छा काम होगा, बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा, तो वो भी कर रहे हैं और हॉर्न की भी हम सुधार कर रहे हैं। एक जो सड़क दुर्घटनाओं के बारे की स्थिति है, उसमें भारत में 1.5 लाख सड़क दुर्घटनाएं और 5 लाख मौतें हैं और विश्व में सबसे अधिक है। इसमें 70% मौतें 18 से 40 वर्षीय युवाओं की है, बहुत दुखद बात है। और हमारे जीडीपी का टोटल 3.40% लॉस सड़क दुर्घटनाओं के कारण हो रहा है और इसलिए 2025 तक सड़क दुर्घटना में 50% कमी करने की हमने संकल्प किया है। और मैं जब स्टॉकहोम में गया था, उसको हमने साइन भी किया एग्रीमेंट को 2030 तक, और हमने तय किया कि 2025 तक ये टारगेट पूरा करेंगे और 2030 तक हम उसको 0 तक लाएंगे। वर्ल्ड में अनेक लोगों ने 0 तक लाया है। इसमें रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, एजुकेशन, इमरजेंसी, ये सब बातों का महत्व है ही। और सभी स्टेक होल्डर जैसे कॉर्पोरेट की भी मदद, एजुकेशन इंस्टीट्यूट की भी मदद, और जैसा मैंने आपको उल्लेख किया कि यहाँ हमारे VNIT, कल मैंने उनको बोला था कि हमारे चौक डिजाइन करने के लिए आप मदद करें, और जो DPR बनाते हैं उनके पीछे भी डंडा लेके उनके ऊपर FIR डाल के इनको लॉकअप में नॉन अवेलेबल ऑफेंस डाल के अंदर करो इंजीनियर और DPR पर, ये भी हमने नए एक्ट में प्रोविजन किया है। गलत DPR बनाते हैं। मैंने उनकी परसों मीटिंग ली और मैंने कहा तुमको मैं जेल की हवा दिखाऊंगा, तुम्हारे DPR परफेक्ट नहीं करेंगे। तो अब ये पूरी सुधार करने में निश्चित रूप से मुझे लगता है कि ये इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट, एजुकेशन एंड इमरजेंसी केयर सर्विसेज, 4 में तो सुधार होगा। और इसमें प्रभावी रूप से जो सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसमें IIT के लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है। केवल प्रॉब्लम यही आता है कि कॉस्ट पे आता है। और ये जो बसेस वगैरह, ये मैंने आपको पिछले बार बताया कि स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी मैं उसका डायरेक्ट नहीं पर मेरे अंडर है वो, ये जितनी बसेस है ये ऐसी है, इसकी विशेषता है कि इनका हॉर्न छोड़कर सब बचता है और उनके पास अब डीजल भरने के लिए भी पैसे नहीं है, तो काय का 35,000 का ये लगाएंगे, वो बहुत कठिन है। कारपोरेशन का घाटा 7 करोड़ है। अब इनकी बस सर्विस, मैं मेट्रो में मत्थे लगाने के पीछे पड़ा, उसमें 40 बसेस से लेकर फोकट में देने के लिए वो तैयार नहीं। तो अब धीरे धीरे इनको भी ढूंढना पड़ेगा कि इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे है। इसके लिए लंदन ट्रांसपोर्ट का जो मॉडल है उस पर हम काम कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर आने के बाद ही वो होगा। तो मेरे को आपको यही कहना है कि सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सस्ती होनी चाहिए। अगर आप महंगी करेंगे तो ये तो अभी ऐसी स्थिति है, तो कहां से लगेगा। और हम जब लोग कोई भी आपकी टेक्नोलॉजी कार में, बस में, ट्रक में लाते हैं, तो मैं बीच में ये ट्रक की केबिन एयर कंडीशन करने के बारे में आग्रही था। तो मेरे पीछे गोयनका जी और इनके ऐसे पीछे पड़े, नहीं बहुत महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगी। इतने बाद लोग सब ऑटोमोबाइल वाले, टाटा वाले, लेलैंड वाले मुझे मिले। फिर मैंने कहा फिर एयर कूलिंग का कुछ करो। और आज वर्ल्ड में जिस प्रकार की ट्रक बॉडीज है, ट्रक प्रकार की केबिन्स है, बसेस है, उस हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड बहुत घटिया है। घटिया शब्द में विचारपूर्वक यूज करो, इससे और कठोर शब्द नहीं है, इसलिए वो यूज करो। तो स्वाभाविक रूप से हमें इसमें सुधार करना होगा, क्योंकि रोड पर जाने के बाद जो जॉइंट्स है रोड के ऊपर और जो क्वालिटी ऑफ रोड्स है, टायर है और इंजन के आवाज के साथ, रोड की क्वालिटी के साथ, सेफ्टी मेजर्स के साथ हमको सभी जगह पर एक आइडियल स्टेज पे पहुंचना है। तो मुझे लगता है कि IIT इसमें हमारा जरूर उपयोग में होगा। एक नागपुर का जो प्रयोग है वो मैं चाहता हूं कि मीडिया इसको छापे, क्योंकि ये पुलिस सर्विस, कलेक्टर, कारपोरेशन, मैं सांसद, ये MP है, हम सबकी एक कमी है। ये जरा छपाइए लोगों में, तो जनता को भी समझ में आएगा कि आप क्या करना है। और नागपुर में आप आए वास्ते कर रहे, इसका 2 साल का पीरियड है, मुझे खुशी है। और मैं इंटेल, IIT हैदराबाद, CRRI, न्यू दिल्ली और महिंद्रा को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा। टोटल इसमें नागपुर में लगभग 15 से दुर्घटनाएं होती है और 250 मौतें हर साल होती है। अब इसमें वाहन सुरक्षा के जो पहलू है उसका स्टडी है, VNIT भी आपको मदद करेगी।
अच्छा है। उनके प्रिंसिपल से मेरी बात हुई है, मुझे मांडे साहब शायद वही के स्टूडेंट हैं, तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत मदद करेंगे। और इसमें ज्यादातर सड़क दुर्घटनाओं में ये पुलिस वाले लिख देते हैं कि ड्राइवर जिम्मेदार है, जो गरीब आदमी है उसका बलि यज्ञ में दिया जाता है। तो ये ना रोड इंजीनियरिंग ना पुलिस को जिम्मेदार है, ड्राइवर जिम्मेदार है, पूरा सच नहीं। इसलिए ड्राइवर को भी ट्रेनिंग देना अच्छा है, ये हम लोग कर रहे हैं। तो मेरी आपसे एक ही है कि ये जो इंटेलिजेंस ट्रैफिक टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल, इसका निश्चित रूप से उपयोग करते समय हमें थोड़े से स्पॉन्सर देखने पड़ेंगे। जैसे आज महेंद्र ने दिया, बाकी लोगों के लिए भी HCL और यहाँ इंफोसिस वगैरह है, और आप भी यहाँ बिहार में हमारे यहाँ कोशिश करेंगे कि इसमें सबका सहयोग कैसा मिले। एक्सीडेंट्स, ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, उसका मैपिंग के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का प्रयोग जो किया जाएगा, इसमें पुलिस कमिश्नर के पास कुछ ब्लैक स्पॉट है, कुछ ब्लैक स्पॉट्स हमारे स्टेट PWD के पास है और कुछ हमारे NHI के पास है। तीनों का आपस में कोई तालमेल नहीं, मिलना जुलना नहीं है। मेरे पास से इनको उनका मालूम है, उनका इनको मालूम है, पर अभी शुरुआत हुई है। यहाँ DCP ट्रैफिक है, वो इंटरेस्ट ले रहे। तो तीनों एजेंसी में आप अगर ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो ये आइडेंटिफाई होंगे और इसको सुधारने का जिम्मेदारी मुझे दी है, ताकि आप निश्चित समय में हम उसको सुधारने का काम करेंगे। इसमें रोड सरफेस कंडीशन, रोड साइनेजेस, रोड मार्किंग, सिग्नल्स डिटेल्स, यूटिलिटी एसेट्स, टाइप ऑफ व्हीकल्स, मॉडल इन यूज, इसका भी डाटा इसमें संकलित होने वाला है, उसका भी फायदा होगा। ये जो ड्राइवर वार्निंग सिस्टम है, इसमें बहुत उपयोगी है और इससे 60 तक के जो डायरेक्ट डैश होती है उसके एक्सीडेंट में कमी आएगी। निश्चित रूप से इसका उपयोग होगा। एक्सीडेंटल ब्लैक स्पॉट जो है उसकी भी कमी आएगी और टेक्नोलॉजी को फिर आगे भी सभी शहरों में ये आगे जाएगी और ये स्मार्ट सिटी बनने में हमें निश्चित रूप से पहचान देगी और मॉडल प्रोजेक्ट है तो बाकी शहरों में भी आगे जाएगा। नागपुर में जो सड़क हादसों की स्थिति है वो भी बहुत चिंताजनक है। शहर में हर साल लगभग 1500 सड़क दुर्घटना होती है और 250 लोग मरते हैं। क्रैश सर्विलिटी इंडेक्स नागपुर में ये 2018 में 21.22 था, 2019 में 24.83 है और 2020 में 70.73, यानी बढ़ा है। जबकि कोविड में सब जगह एक्सीडेंट कम हुए, मरने वाले की संख्या भी नागपुर में ये बढ़ी है। तो मेरे से लेकर ये जितने अधिकारी हैं उनके लिए अच्छी बात नहीं है, इसको बहुत सीरियसली हमको एड्रेस करना पड़ेगा। ये जो 3 वर्षों में क्रैश सर्विलिटी जो है, इसमें प्रति 100 दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों में लगातार वृद्धि हो रही है, डेंजरस है। नागपुर शहर में प्रति 1 लाख की आबादी पर औसत 8 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो रही है, जो मुंबई शहर की तुलना में 4 गुना अधिक है। मुंबई में जितने लोग मर रहे हैं उससे 4 गुना अधिक नागपुर में मर रहे। ये थोड़ा मीडिया वाले भी इसको छापे और ध्यान दे इसके तरफ, कौन सी यंत्रणा ढीली है। और मैं सांसद के रूप में सड़क सुरक्षा के लिए काम कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन टू एक्सेप्ट दिस, और ये सुधारना चाहिए। इसके लिए टेक्निकल बाकी सब बातों में आपका सहयोग है और मुझे लगता है ये प्रयोग करने के बाद 3 साल के अंदर ये 250 की जो मौतें हैं, इसको हम लोग अगर बहुत बड़े प्रमाण में, मैं आज कुछ कहता नहीं हूं, तो ये जान बचेगी तो ये दैट विल बी ए ग्रेट अचीवमेंट। और इसलिए मैं निश्चित रूप से निवृत्ति राय जी को, हमारे सभी इंस्टीट्यूशन के प्रमुखों को ये अनुरोध करूंगा कि नागपुर की सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, इंस्टीट्यूशंस, यहाँ के कारपोरेट्स आपको और मदद करेंगे। मेरा ऑफिस भी इसमें कोऑर्डिनेट करेगा, म्यूनिसिपल कारपोरेशन, मेयर, वो भी करेंगे। और निश्चित रूप से ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हुआ तो ये अनेक शहरों में अगर इसका उसी प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन होगा तो हम लोग कह रहे हैं कि जो 1.5 लाख लोग मर रहे हैं, 3.14% का GDP का जो नुकसान है, मुझे लगता है कि अगर इसको हम बदल सकेंगे तो निश्चित रूप से देश के लिए बहुत बड़ी बात होगी। एक अच्छी शुरुआत आपने नागपुर में की है। फिर से एक बार निवृत्ति राय, इंटेल की प्रमुख जो है, उनको
बाद में इसको स्पॉन्सरशिप देने वाले महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो प्रमुख है आनंद महिंद्रा, उनको भी, और श्रीकांत दुबे है, उनको भी मैं धन्यवाद दूंगा। मुझे आनंद महिंद्रा जी ने बताया कि उन्होंने मुंबई पुणे का भी ऐसा एक प्रोजेक्ट लिया था और उस पर जो मिश्रा करके उन्होंने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया। और वहां उन्होंने पीयूष मिश्रा, पीयूष तिवारी, बहुत अच्छा काम किया। उसका परसों प्रेजेंटेशन मैंने हमारे यहाँ रखा था। तो आपको मैं एक अनुरोध करूंगा कि जो सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट है पीयूष के हैं, आपके हैं और लोगों के हैं, इन इंस्टीट्यूशन के हैं, इसको कैंपेनिंग करके इसकी कोई एक पॉलिसी बने, और ताकि मैं अपने मिनिस्ट्री की ओर से ये पुलिस ऑफिसर्स के लिए ट्रेनिंग के लिए, इंजीनियर्स के ट्रेनिंग के लिए इसका उपयोग कर सकें। ये जितने सक्सेसफुल एक्सपीरियंस है, दैट इज नॉलेज। मैं अक्सर एक बात कहते रहता हूँ कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज अ नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ इन द फ्यूचर फॉर द कंट्री। तो मैं मानता हूँ ये एक नॉलेज पेपर, अगर आप इसको वेबसाइट पर भी रखें और हमारा हार्ड कॉपी भी तैयार करेंगे, तो दिस कैन बी इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स इन द कंट्री। बहुत अच्छा काम होगा। मैं खुद का मेरा बहुत एक्सीडेंट हुआ था, मैं भूगल रोगी हूँ, और इसलिए मैं इसके बारे में बहुत संवेदनशील भी हूँ, और मैं निश्चित रूप से चाहता हूँ कि पूरे देश में मरने वाले लोगों की संख्या कम हो। कभी कभी गुस्से से मैं हमारे इंजीनियर को पूछता था कि तुम्हारे घर का कोई बेटा बेटी मर जाएगी तो आपको क्या लगेगा, आप ऐसे गोतक क्यों हैं, आप क्यों नहीं संवेदनशील हो इसके बारे में। तो मुझे लगता है कि ये कभी प्रसंग किसके ऊपर ना है, क्योंकि अनेक घरों में यंग लड़के लड़कियां चले गए हैं। वो संकट अगर बाकी लोगों पर नहीं आना चाहिए तो समाज के सभी स्टेक होल्डर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कॉर्पोरेट्स, इंजीनियर्स, पुलिस अधिकारी, आरटीओ ऑफिसर्स, इन सबको लोकाभिमुख संवेदनशील बनना होगा। तभी हम भविष्य में होने वाली ऐसी जवान लोगों की जो हानि हो रही है, जो हमारे प्रिय व्यक्ति को उनको गंवाना पड़ता है, निश्चित रूप से उनकी जान बचाने में हम सफल होंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ नागपुर का सांसद होने के नाते। हमारे शहर के गरीब लोगों की एक्सीडेंट्स कम होंगे, मौतें कम होंगी, दैट क्रेडिट विल गो टू यू। निश्चित रूप से आप ये अच्छा काम करें। मैं दिल से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद।